हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच abolished the title any government of India or any government of India cannot give any title to the citizen of India or the non-citizen of India who is working under the supervision of Indian government, because it abolished the equality. It because it is ensured to equality of status without any special privilege. Article 18 Clause 1 of Indian Constitution says the government of India cannot give any title, military title, awards to the citizen of India or non-citizen of India who is working under the government of India as employee of the government of India. It cannot give any military titles like major or general, or it cannot give any academic award like doctorate, etc. Article 18 Clause 2 of Indian Constitution says that any Indian citizen cannot accept any title from the foreigner countries without the permission of Indian government or presidents. Article 18 Clause 3 of Indian Constitution says if any foreigner who is working under the Indian government cannot accept any titles except taking the permission of President of the India, because it abolished the equality of status among citizens of India and non-citizen of India. Article 18 and Clause 4 of Indian Constitution says any Indian government servant cannot accept any gift, job, etc. without the permission of the President of India. If he wanted to take any award or job from the foreigner country, he should ask the permission of President of India. These titles are given under the British era, like Bahadur or Maharaj, like Rai Bahadur or Maharaj. In the modern era, this title is not allowed. This kind of titles are not allowed and prohibited under the Article 18 of Indian Constitution. But as per the Supreme Court, in the case of Balaji Raghavan, award like Bharat Ratna, Padma Shri are not prohibited, and the title which is given under the award which is given as Bharat Ratna and Padma Shri or Padma Vibhushan can be used as title, because it is not prohibited
It is awarded to the citizen of India for their social work or work for the benefit of the Indian citizen or Indian society, and it can recognized by the merits. It can recognize on the merit and not as prohibition of Indian constitution. भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का की अनुच्छेद 18 में विशिष्ट जो उपाधियाँ दी गई होती हैं उसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 और क्लास 1 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि किसी प्रकार के टाइटल्स को उपाधि को स्वीकृत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो समानता को सुनिश्चित नहीं करती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 और उप अनुच्छेद 1 में ये बात क्लास 1 में ये बात कही गई है कि कोई भी कर्मचारी जो कि भारत सरकार में कार्यरत है वो किसी भी विदेशी सम्मान को स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी प्रकार के सम्मान को नहीं लेगा क्योंकि भारत सरकार किसी भी प्रकार के विशेष सम्मान को नहीं दे सकती, जैसे कि मिलिट्री शीर्षक उपनाम या टाइटल्स को नहीं दे सकती, चाहे वो मिलिट्री का जनरल हो या फिर मेजर हो या फिर कोई शैक्षणिक उपाधि भारत सरकार अपने किसी भी कर्मचारी को नहीं दे सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 और क्लास 2 में ये बात कही गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश के द्वारा कोई उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 और क्लास 3 में ये बात कही गई है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो कि भारत सरकार के अंदर कार्यरत है वो किसी भी दूसरे देश से कोई भी उपनाम या टाइटल स्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो इसके लिए भारतीय सरकार और राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। भारतीय संविधान की धारा 18 अनुच्छेद 18 और क्लास 4 में ये बात कही गई है कि कोई भी नागरिक जो कि भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, कर्मचारी है, तो वो किसी भी प्रकार के उपहार और नौकरी या नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। ये सारी उपाधियाँ प्राचीन समय में ब्रिटिश काल में राजाओं को, महान मनोभावों को दी जाती थी, जैसे कि राय बहादुर और महाराज, परंतु वर्तमान में ऐसी उपाधियों का प्रयोग प्रतिबंधित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बालाजी राघवन केस में ये बात कही गई।
जी राघवन केस में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि यदि कोई उपाधि भारत सरकार द्वारा दी जाती, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ऐसे उपाधियों को मान्यता प्राप्त है क्योंकि ये उपाधियाँ किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, बल्कि उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदानों, विशिष्ट व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानों के लिए दी जाती है। इसलिए इस प्रकार की उपाधियों को भारत सरकार मान्यता देती है और इस प्रकार की उपाधियों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जिन्हें ये उपाधियाँ मिली हैं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर लीगल अपडेट्स के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।